Okay, so today we are celebrating the Lord's table. आज हम प्रभु भोज में हम उसके हिस्सा लेने वाले हैं। But before that, let us go into the Word and understand what does the Word speak about. और हम उससे पहले वचन में जाएंगे और वचन हमें क्या बताता है हम उसको सीखेंगे। Today I want to speak to you about, you will think how we will find the bread and wine in this place. I will explain to you how we will find the bread, the Lord's table in this particular book. और हम देखते हैं कि आप सोचे कि जब मैं आपको सिखाऊंगा तो प्रभु भोज इस किताब में कैसा इसको हम सीख सकते हैं या कैसे मालूम हो सकता है हम देखेंगे। In the book of Jonah. हम यूहन्ना के किताब में हम देखेंगे। The Old Testament. ये पुराने नियम में है। Now the book of Jonah is a story about the prophet who ran away from God. और ये यूहन्ना ये उस व्यक्ति है जो एक भविष्यवक्ता था और प्रभु के शब्दों से वो भाग रहा था। He tried to run away from God, but he discovered that running away from God is nothing compared to God's mercy. वो प्रभु के उस शब्दों से वो भाग रहा था जो प्रभु से करने के लिए कह रहा था, लेकिन उसने देखा कि प्रभु का जो अनुग्रह जो दया वो उससे भी कहीं ज्यादा है। The human disobedience is smaller than compared to God's mercy. मनुष्य का जो ना आज्ञा मानना उससे भी बड़ा प्रभु का दया है। God commanded Jonah to go to a wicked city. और प्रभु ने उससे कहा था यूहन्ना से कि आपको एक ऐसे देश में जाना है जो बुराई वहां पर होता है। एक शहर था, उसका नाम था निनेवा। निनेवा एक शहर का नाम था। And the Bible calls it a wicked city. और प्रभु से कहा है कि ये बुराई का शहर है। And the Bible wicked city, the dush city. You can imagine when God is calling wicked, so you can imagine how wicked it must be. और अगर प्रभु उसे उस शहर को दुष्टता में अगर गिनती करता है तो आप सोच सकते हैं कि प्रभु उसे कैसा देख रहा है। And Jonah was supposed to go to that city and to preach to that city about repentance. और यूहन्ना को प्रभु ने ये आज्ञा दी थी कि वहां पर जाके प्रचार करना है पश्चाताप का। लेकिन what did Jonah do? Jonah ran away from what God had called him to be, and he ran away from God, and this act is called as a disobedience towards God. और यूहन्ना ने प्रभु को जब इस आवाज को सुना, लेकिन यूहन्ना जो है प्रभु से दूर भाग गया। God told him to go in one direction. और प्रभु ने उसे यूहन्ना से कहा था कि आप इस डायरेक्शन में जाइए। He went just the opposite direction. लेकिन वो प्रभु के विपरीत रास्ते में चला गया। And if you read the Bible very clearly, it says he went down to Joppa. और वो कहता है कि अगर आप वचन में देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे कहता है कि एक जोफा नाम का एक शहर जगह था, वो वहाँ पर गहराई में चला गया। He went down to the ship, he went down to the river. All whatever he did was the downfall. और आप देखते हैं कि यूहन्ना ने परमेश्वर से दूर होने की कोशिश की और बहुत गहराई में अगर नीचे जाने के देखे हमेशा वो नीचे की तरफ यानी गिरते रहे। And the word of God says that Jonah he went just the opposite direction and he went in and he boarded a ship. जहाज। तो यूहन्ना जो था वो एक जहाज में जाकर छुप गया था। And the Bible says there the storm was too loud. और वहाँ पे एक बड़ी तूफान हुई। And the people in the ship were trying to find out how this has happened. Then finally, when they put a lot, they came to know that it was Jonah who was running away from God. और हम देखते हैं कि जहाज के जो लोग थे वो लोग सोच रहे थे कि ये तूफान क्यों है, किसने और क्या है, तो वहाँ पे ऐसा मालूम हुआ कि यूहन्ना की वजह से ये हो रहा था। And what did Jonah do? यूहन्ना ने क्या किया? He confessed. उसने अपना मुंह से कबूल किया। He confessed that it is because of me. और उसने मुंह से कबूला कि ये तो मेरे वजह से हुआ है। And what did he told? And what did he tell the captain of the ship? और उसने जो जहाज की जो कप्तान था उससे क्या कहा? He told the captain of the ship to throw him into that waters. और उसने कहा कि जब अगर तुम मुझे इस जहाज से फेंक दोगे समुद्र में तब वो तूफान शांत होगा। See, right now I'm telling you certain small points which is highlighting, which is showing about Jesus. मैं छोटी-छोटी बात आपसे कह रही हूँ ताकि आपको मैं बता रही हूँ कि यीशु के बारे में। Shadow is Jonah.
जो योना जो है एक छाव है, एक परछाई, हाँ एक परछाई है। परछाई है। The reality is Jesus. लेकिन हकीकत में देखेंगे हम यीशु को देख रहे हैं। So when we're looking into the book of Jonah, अगर हम योना की किताब में हम we देखते are हैं, looking into the character of Jesus. हम उस जगह पे यीशु मसीह को भी देखते हैं। So we see what Jonah told, throw me into the water. The same way Jesus chose to come into this world which was so wicked. हम देखते हैं कि जैसा कि योना ने कहा कि मुझे आप लोग समुद्र में फेंक दे, उसी तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी जो ये दुनिया जो पूरे बुराई में पाप में थे, यीशु मसीह इस पाप दुनिया में, पापी दुनिया में यीशु मसीह आया। Okay, and then what happened? He was thrown into the water, into the sea, and the Bible says that one fish swallowed him up. हम देखते हैं कि जैसे ही समुद्र में उसे जब फेंका गया तो वहां पे समुद्र में एक बड़ी मछली थी जो उसे निगल गया। And the word of God says that he was into the fish belly for 3 days. और हम देखते हैं Understanding what is 3 days? और Jesus. बाइबल बताती है कि 3 दिन योना जो था मछली के पेट में था, तो उसका मतलब क्या दिखाता है? यीशु मसीह। Jonah prayed योना ने प्रार्थना किया and he repented. और उसने पश्चाताप किया, And the word of God says that God rescued him. और बाइबल बताती है कि जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर उसे उस मछली के मुंह से बाहर निकाला। And God gave him a second chance प्रभु ने उन्हें दूसरा मौका दिया to go to that city where he had appointed him to go. और प्रभु ने फिर मौका दिया वही जगह पे जाने के लिए जहां पर प्रभु ने उसे कहा था। And the word of God says this time he went. और प्रभु का वचन कहता है कि इस समय वो गया, Jonah preached यूहन्ना ने प्रचार किया, to the city of Nineveh. निनवे के जो शहर में प्रचार किया, And from the king, और राजा जो था, from the king to the smallest child, राजा से लेके वहां पे छोटे बच्चे तक उसने प्रचार किया। everybody repented. हर लोग राजा से लेके बच्चे तक पश्चाताप किया, They fasted उन्होंने उपवास किया and they prayed. और उन्होंने प्रार्थना किया, And God saw not their works. और प्रभु ने उनके कामों को नहीं देखा। God did see how much they fasted, how they fasted, and what they were doing, whether they were dancing, they were worshipping, they were preaching. God saw their hearts. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब उन्होंने पश्चाताप किया और उपवास किया, प्रभु ने उस चीजों को नहीं, लेकिन प्रभु ने उनके हृदय को देखा कि हृदय किस तरह प्रभु की तरफ मुड़ा है। And the word of God says the city, and God said, I relent from destructing this city. And the word of God said the wicked city of Nineveh was saved. बात बताती है कि परमेश्वर ने जब उनके हृदय को देखा कि परमेश्वर की तरफ मुड़ा है, तब परमेश्वर ने अपने इरादों को बदल दिया, उसे नाश नहीं, लेकिन वो शहर जो पूरे बुराई से बना हुआ था उसे बचा लिया। Is anything difficult for the Lord? क्या प्रभु के लिए कुछ कठिन है? When He can change a wicked city from the king to the smallest child, then whatever today you are praying is nothing compared to this what has happened. So this gives us an encouragement. This gives us a boost that when we pray, something happens. हम देख सकते हैं यहाँ पर जब प्रभु ने कि प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं, बुराई शहर को प्रभु ने बचा लिया, तो हम भी जब प्रार्थना करते हैं विश्वास करें कि हमारी प्रार्थना सुनी जाती है और वहां पर कार्य होता है। So today the topic of this sermon, of this particular what I am teaching today is prayer that shakes a city. हम मेरा आज ये बोलने का ये है कि प्रार्थना करें और शहर को हम हिला दें। And after that what happened? I'm just giving you a summary of this thing. After that what happened? Once the city of Nineveh was saved, was Jonah happy? अगर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने निनवे सिटी को, जो बुराई का शहर को बचाया, तो क्या यूहन्ना खुश था? नहीं। जब भी समझो कि अगर मुंबई सिटी है, ओके, और वो दुष्ट है, विकेट है, there are many plus and the negatives also in that city. Supposing you and your whole country or your whole people, the church is praying and you see that the city is saved, will you not be happy? अगर आप देखते हैं कि आपका कलीसिया अगर किसी शहर जो बुरा शहर है, अगर उसके लिए प्रार्थना करता है और वो बदल जाता है, बच जाता है, तो क्या आप खुश नहीं होगे? You will be happy. आप खुश But the होंगे। word of God says Jonah was upset. लेकिन
लेकिन बाइबल यहाँ पे बताती है कि यूहन्ना जो था वो खुश नहीं था। He was upset because God showed mercy. He thought that the city of Nineveh, the people, they did not deserve God's mercy. So he was upset that why did God save this city? यूहन्ना को ऐसा लगता था कि परमेश्वर इस देश को नाश करने वाले हैं, और प्रभु ने जब नाश नहीं किया तो उसे प्रभु के जो इस कार्य से खुश नहीं था, उसे दुख हो गया। So he ran away again. Again he went to some place. वो फिर से भागकर एक जगह पर रहने लगा। And he stayed in a place where there was a plant which had come up. वहाँ पे देखते हैं कि एक ऐसे जो जड़ है, जो झाड़ है, पौधा, एक पौधा जो है वहाँ पे उगने लगा। And under that पौधा he said run to protect himself from the sun and from the wind and all these things. So he was sitting under that tree. और देखते हैं कि जब पौधे जब बड़े होने लगा, वहाँ पे एक ऐसे पत्ते वहाँ पर आए, तो वहाँ पर यूहन्ना उसके अंदर बैठने का कोशिश किया ताकि सूरज की गर्मी उसको ना लगे। Then what happened? तो क्या हुआ? In a small worm, it came and it destroyed that plant. और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटे से कीड़ा जो है उस पत्ते को पूरी तरह से नाश कर दिया। Again Jonah was upset. तो फिर से यूहन्ना जो था वो गुस्सा हो गया। So at that time God spoke to Jonah. उस समय हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यूहन्ना से बात किया। God told Jonah, you are upset about a plant. और परमेश्वर उससे कहता है कि तू तो इस पत्ते जो मुरझा गया कीड़े काटने से, तू उसके लिए नाराज है। Up think about the people that have seen the city of Nineveh. About 120,000 people in the city. They were destructive. They were supposed to go to destruction, but I saved them. Imagine how much hurt I must be feeling. So I am a God of compassion. और प्रभु ने उससे कहा कि तूने एक पौधे के नाश होने से तू नाराज हो गया। तू देख सकता है कि ये शहर में कितने लोग हैं जिसे मैं प्रेम करता हूँ और मैं दया करता हूँ, जो मैं उन्हें बचाना चाहता है। So this is the story of Jonah. ये यूहन्ना का कहानी है, which is just a shadow of who actually the prophet is. और हम देखते हैं कि ये उसकी कहानी जो सही में एक भविष्यवक्ता था। Prophet, who is the prophet here? It is Jonah. But if you see the shadow, everything that is happening here is about Jesus. हम देखते हैं कि यूहन्ना के जो उसके भविष्यवक्ता के जीवन के बारे में, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह को भी। Okay, I will speak to you about Jesus after the last few minutes, but now just 10 minutes. I just want you to be with me. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में 10 मिनट रहे। I want to talk to you about the prayer which Jonah made. मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना जो यूहन्ना ने किया। How many of you know that every year in the month of January for 21 days we are fasting and praying as a church? कितने लोग अभी जानते हैं कि हर साल में हम ये उपवास की प्रार्थना 21 दिन का रखते हैं। So I will encourage you, prepare yourself for this month, that next month where we will pray for 21 days. आप इस चीज को ध्यान में रखें कि आने वाले साल में फिर से हम जनवरी के महीने में 21 दिन के हम उपवास और प्रार्थना में जाने वाले हैं। Prayer is very important, my dear beloved. प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय भाई। Sometimes you may not see the result. आप शायद सोचते हैं कि इसका कोई कारण नहीं। Now, for example, I want to tell you that Pastor has gone to Punjab. हम देखते हैं कि जैसे कि हम पंजाब गए थे। How do you, what I can say, Pastor must have not even seen the people that has been touched, the people that has been actually received Jesus as a personal savior. God didn't allow certain things for him to see those things which has happened in a mighty way over there. But we know that something has happened over there. हम देख सकते हैं कि शायद उस मीटिंग में हमने कुछ ज्यादा चीज को नहीं देख पाए, लेकिन हमारी आंखों से, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर लोगों के जीवन में कार्य किया। Sometimes God doesn't allow us to see many things because sometimes if we might go into that zone where we are so prideful and we think, that I can do all the things and this and that and many things. There are certain reasons why the Lord will not allow us to see many things. But when you are praying, understand, my dear beloved, that prayer is always reaching to the throne of heaven. हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज शायद हम नहीं देख पाते हैं जब प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक जाते हैं। Amen. Prayer is not any church activity. प्रार्थना जो है ये कोई कलीसिया का कार्य नहीं है। Prayer is not just
just the words that we speak. प्रार्थना का एक शब्द नहीं जो हम बातें करते It हैं, is a divine invitation. और ये अलौकिक एक समय है। डिवाइन इन्विटेशन मतलब एक दैविक आमंत्रण है आपके लिए टू पार्टनर विद गॉड इन प्रेयर। ये दैविक एक आमंत्रण है, हमें बुलाता है कि प्रभु के साथ में जुड़ने के लिए, उसके साथ में पार्टनरशिप करने And के लिए। you become that person who God allows you to touch somebody else's lives. और हम उस प्रभु के साथ में जुड़कर जब हम प्रार्थना करते हैं, किसी के जीवन में कार्य हो जाता है। Amen. God is using you to change somebody else's lives. आपको पिता परमेश्वर जो है इस्तेमाल करता है किसी के जीवन में आशीष के कारण। You can change an individual life. आप किसी के व्यक्तिगत जीवन में कार्य हो You सकता can है। change a family's life. आप जब प्रार्थना करते हो तो परिवार बदल सकता You है। can change cities. आप जो है प्रार्थना के द्वारा शहर बदल सकता है। 1, 2. Just 2 people said amen. So they फिर दो लोग आमीन कहा। You can change cities. आप शहर बदल सकते Do हैं। you believe? Do क्या you विश्वास believe? करते हैं? Do you believe? क्या विश्वास करते हैं? Prayer can do mighty things, my dear beloved. This will प्रार्थना जो है, प्रार्थना जो है बहुत ही महान कार्य You कर can सकता touch real life. है। आप किसी की व्यक्तिगत जीवन में कार्य हो सकता People है। for so fearful, people for having jobs problem, for children problem, for marriage problem, for this problem, for that problem. You can turn their situations by just being a partner, praying for them. आप किसी के जीवन में किसी के काम के बारे में हर चीज वो बदल सकता है, आप किसी के साथ में जुड़कर जब आप प्रार्थना करते हो। In the city of Nineveh, the king to the smaller children, everybody fasted and prayed, and that city was saved. हम देखते हैं कि जैसा कि योना ने जब उधर पे प्रचार किया, प्रभु का न्याय आने का, और तब राजा ने और राजा से लेके बच्चे इवन जानवर भी वहां पर उपवास किया, वो शहर बदल गया। Amen. This city was called as a city of violence. This city was called as a city of many problems, and this city was full of wickedness. Even spiritual darkness was there in that place. But when the light of the Lord came, the darkness vanished, and the city was turned for हम देख सकते हैं कि ये जो शहर था, एक पूरा झगड़े का शहर था, बुराई का, पाप का शहर था, बहुत सारे ऐसे वहां पर समस्या होती थी, लेकिन जब ये शहर उपवास करने लगा और परमेश्वर की तरफ पूरे हृदय से मुड़ गया, उस शहर को परमेश्वर ने बचा लिया। Amen. God can change situations in our lives. प्रभु समस्या को बदल सकता है हमारे जीवन में। You know what you think is impossible for God, it is possible. अगर हम समझते हैं कि हमारे लिए ये असंभव है, लेकिन प्रभु के लिए संभव है। When Jonah came with the message, जब योना ने एक समाचार के साथ में आया, when he went to Nineveh for the first time, जब वो पहली बार निनेवे में चला गया, he said 40 more days and Nineveh will be completely destroyed. और उसने कहा कि 40 दिन के बाद ये निनेवे जो देश है, ये शहर है, ये मिट जाएगा। And immediately the king called for the fasting and the prayer. तुरंत राजा ने जो है शहर को कह दिया कि आइए हम सब उपवास करें। And when the Lord saw this, he himself said, I relent and I don't want to destroy the city. I heal this city. जब परमेश्वर ने उनके हृदय को देखा कि पूरी तरह हृदय परमेश्वर की तरफ मुड़ रहा है, परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया। God did not give up on the city of Nineveh. जब अगर परमेश्वर ने उस निर्णय के शहर को अपने छोड़ने दिया, He won't give up on your marriage. वो आपके शादीशुदा जीवन को परमेश्वर ने हाथ ऊपर नहीं उठाता है। He will not give up on your child. वो आपके बच्चे को नहीं छोड़ता He है। will not give up on your finances. वो आपके पैसे को नहीं छोड़ता है। He will not give up on your situation, on your job. वो He आपके- will not give up on your future. वो आपकी जो भी समस्या है, आपके भविष्य भी है, परमेश्वर कभी उससे मुड़ेगा नहीं। Amen. The impossible situation God can change in a minute. Do you agree? आपके Do you हर एक believe that he can असंभव do का that? चीज, Do you believe that he can do that? आपके हर एक असंभव जो आपको लगता है, प्रभु आपके लिए सब कुछ बदल देगा। बदल देगा और बदलेगा. Amen. Amen. The first point is for God nothing is difficult. पहली बात, प्रभु के लिए कोई भी कठिन नहीं है। Second point, the prayer begins by your heart.
हम देखते हैं कि प्रार्थना जो है आपके हृदय से होना चाहिए। For example, now whenever you go with the GPS, I remember when we had gone to Dubai, we had put the GPS on, and we had our brother Russell with us, So instead of going to this place, he took us right in the opposite place, and he took us to the airport, and we got lost. But the GPS did not give up. The GPS said relocating, and it relocated the GPS, and it brought it back to the place where we wanted to go. हम देखते हैं कि जैसे हम दुबई गए थे और जीपीएस हम जब डाले थे, लेकिन जीपीएस जो है हमें जो जगह पे जाना था उसके ऑपोजिट में हम चले गए और एयरपोर्ट के अंदर, लेकिन फिर भी वो जो जीपीएस चलता उसने गिव अप नहीं किया, उसने हिम्मत नहीं हारा, लेकिन जीपीएस जो था हमें वापस उसी मोड़ से लाके और सही मोड़ पे हमें फिर खड़ा कर दिया। So what is GPS for us? जीपीएस आज हमारे लिए क्या है? Repentance. जीपीएस जो है हमें दिखाता है पश्चाताप करना। So when you start repenting, जब आप वापस उसको रिपीट यानी आप पश्चाताप करते हैं, supposing you are going in this direction and you have done all the messy things, messy situation, all the things that was not according to God's plan, you have done it over here. But when you repent, what happens? The GPS moves back and it goes to that location where God has called you to be in that place. आप जब जीपीएस लाके जाते हैं हो सकता है कि आप उसके थ्रू अगर आप मिस कर सकते हो, आप चूक जाते हो, आप कहीं और मुड़ जाते हो, फिर भी जीपीएस जो है आपको मुड़कर वापस मोड़कर आपको वहीं पे जगह लाके छोड़ता है। The king of Nineveh did not respond to Jonah with pride. और जो निनिवे जो देश था राजा, उसने योना को पलटकर अपने घमंड से कुछ बातें नहीं की, But he bowed down. लेकिन वो नम्र हो गया। He bowed down with humility. वो नम्र हो गया पूरी तरह वहां पर। He removed his robe of the king and he put a sackcloth and he bowed down in the ashes and he prayed. उसने अपने राजा के वस्त्रों को निकालकर एक ऐसे वस्त्रों को पहना जहां पर नम्रता को दिखाते और वो वहां पर राख था, उस राख के तरफ पूरी तरह झुक गया। It was not performance. It was एक प्रदर्शन नहीं था। वो क्या था? It was coming from the heart. वो सिर्फ दिखावा के लिए नहीं, लेकिन वो हृदय से वो पश्चाताप और नम्र। Jonah chapter 3 verse 8 says, and let everyone call urgently on God, and call everything urgently on God. And what happened? Immediately it was answered. और हम देखते हैं कि 3:8 में तुरंत उसने बहुत लोगों को कहा कि जल्दी हम सब लोग आए और वहां पर उन्होंने पश्चाताप किया और कार्य हुआ। So which prayer will touch the heaven? तो कौन सी ऐसी प्रार्थना जो है जो स्वर्ग को छू लेती है? The prayer that you come from your heart. जो प्रार्थना आपके हृदय से आती है। Jonah's prayer, it came from the heart, but later on he was upset with God for saving that city. यूहन्ना प्रार्थना तो पश्चाताप का किया हृदय से मछली के मुंह में, लेकिन जब प्रचार करने लगा तो उसके वो थोड़ा सा नाराज था। He was not happy in his heart that the Lord has saved the city of Nineveh. वो खुश नहीं था कि परमेश्वर ने उस देश को बचाया। If you have a heart अगर आपका हृदय है for this church, अगर इस कलीसिया के if लिए, you have a heart for this place, अगर आपका हृदय है कलीसिया के लिए, then you will start praying from your heart. God will answer the prayers for this church. जब आप इस कलीसिया के लिए है, आपका हृदय इस कलीसिया के लिए है और आप उसी हृदय से जब प्रार्थना करोगे तो वो हृदय परमेश्वर प्रार्थना सुनकर कार्य The second करेगा। point is prayer is powerful when it comes from a humble and a sincere heart. हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट जो हमने बताया, प्रार्थना जो है नम्रता और हृदय से होता है तो वो सामर्थ्य होता है। Have you been to some place, where somebody has forgiven you even before you ask forgiveness? अगर हम देखेंगे कि अगर आपको कोई क्षमा करता है, जब आप उसको क्षमा मांगने से पहले कोई आपको क्षमा करता है। Understood? Before you asking forgiveness, has somebody forgiven you? आप किसी को क्षमा मांगने से पहले वो आपको अगर पहला क्षमा कर देता है, No wonder you must have messed it out, you must have done so many things, but before you asking forgiveness,
that opposite person has forgiven you, that is God. हम देखते हैं कि अगर आप उनके साथ में कितना भी बुराई किया हो, कितना भी कुछ उसके साथ में गलत किया हो, लेकिन आप जब उससे क्षमा मांगने जाते हैं, उससे पहले अगर सामने वाला व्यक्ति आपको क्षमा कर देता है, तो वो हम देखते हैं कि प्रभु ने ऐसा कर दिया था। He is God, He is much quick to forgive us. He is a God of mercy. He will forgive. There was no need for him to forgive the city of Nineveh, but He is a God of mercy, and He forgave the whole people, the city of Nineveh, and He healed that land. हम देखते हैं कि प्रभु ऐसा है, जल्द से वो क्षमा करने वाला प्रभु है। जब हम उसके तरफ पूरी तरह मुड़ते हैं, जल्द से क्षमा करता है। Jonah 3:10 says, when God saw what he did from their heart, what they did, and the word of God says, He relented. And then God saw their works, that they turned from the evil ways, and God relented from the disaster that He has said He will bring upon them, and He did not do it. योना 3:10 में कहता है कि प्रभु ने उनका हृदय देखा कि वो लोग तुरंत जब पश्चाताप हुआ, प्रभु तुरंत उन्हें क्षमा कर चुका। Amen. Judgment can be halted. जो न्याय है वो उसको रुका सकता है। Lives can be restored. जो जीवन है उसको फिर से वो वापस उसको पुनरुत्थान हो। Generations can be healed. जो पीढ़ी है वो चंगाई हो सकता है। Cities can be transformed. और जो शहर है वो बदल सकता है। Not because of you. आपके वजह से नहीं, because God is merciful. क्योंकि प्रभु है वो दया का परमेश्वर। Amen. He is a God of mercy. वो दया का परमेश्वर है। God can listen to the city of Nineveh. He will not listen to your prayers for whatever prayers that you are doing. अगर परमेश्वर निन्याय के उस शहर को बदल सकता है, क्षमा कर सकता है, तो क्या हमारा प्रार्थना नहीं सुन सकता है? Prayer works because God is merciful. प्रार्थना काम करता है क्योंकि प्रभु दया का प्रभु है। Not because of my perfection, but because He is merciful. इसलिए नहीं कि मैं सिद्ध हूँ, लेकिन इसके लिए कि प्रभु दया का प्रभु है। Amen. So the fourth point, prayer can change what is said to happen. चौथी बात हम देखेंगे, प्रार्थना जो बदल सकता है, जो आपने अगर कुछ होने वाला है, वो आप सोचते हैं वो ऐसा ही होगा, but the word of God says prayer can change what is said to happen. आप सोचते हैं कि ये तो ऐसा ही होगा, लेकिन प्रार्थना जब आप करते हैं तो प्रार्थना उस चीज को बदल सकता है। Imagine a doctor telling somebody, you are not going to be healed unless and until you do this, unless and until you change your diet. Only then your health will be restored. उदाहरण, अगर डॉक्टर आपसे कहता है कि ये आप चंगाई नहीं पा सकते हो, क्योंकि अगर आप यही नहीं करोगे, अगर आप वैसे नहीं करोगे, तो आप चंगाई नहीं पाओगे। So when you change your diet, when you change your everything, you can see that your health starts changing. हम देखते हैं कि जब आप उसको डाइट करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, तो शायद आपके जो शरीर का जो भाव है वो बदलने लगता है। Nineveh was meant to be destroyed. हम देखते हैं कि निनवे जो शहर था वो तो नाश होने पर था, लेकिन परंतु क्या हो गया? क्या हुआ? God had planned, decided that He will destroy that city. But what happened? प्रभु ने यहोना को भेजकर ये कह दिया कि वो उसको नाश करेगा। Can this happen for your situation? क्या आपकी इस परिस्थिति आपके जीवन में ऐसा बदल सकता है? Can it happen for your situation? क्या बदल सकता है? It can happen. When it is showing us here, it can happen in my life also. बदल सकता है। Things will change. चीज बदल सकता है। Things can change. बदल सकता है। Things will shift. बदल सकता है। Until and unless we do not kneel, nothing will happen. जब तक हम उसको एकदम गंभीरता से नहीं लेंगे तो वो नहीं होगा कुछ। Breakthroughs can happen, but we have to wait on the Lord. छुटकारा हो सकता है, हमें प्रभु के पास। Amen. Some things in our lives will change, but if we do not want to seek the Lord, प्रभु जो करना चाहता है वो करेगा, मैं तो ऐसे बैठूंगा, नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। आपको प्रार्थना करना है, घुटना टीकना है, फास्टिंग करना है, प्रार्थना करना है, उसके because of that you're becoming a partner and God will use you to touch somebody else's life. हमें प्रभु को ये नहीं बैठ के देखना है कि प्रभु कुछ करे, लेकिन हमें प्रार्थना करना है, प्रभु के साथ में पार्टनर बनना है
उसका जोड़ी बनना है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो वहां पर कार्य होगा। Now you will say in the church there are so many people. You will say in the church there are so many people. आप कहेंगे कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, Let them pray. वो लोग को प्रार्थना करने दो। ऐसा कोई है बोलने वाला? हाँ? क्या हमारे बीच में ऐसा कोई है? Say, why मैं क्यों प्रार्थना करूँगा? उधर है ना ब्रदर अनिल है, आनंद है, बलवीर है, सब लोग है, ये सब लोग है, वो लोग करने दो। मेरा पास तो टाइम नहीं है। I'm so busy in this and this and this and that. Do you want to be the switch in this room? क्या अगर आप कहेंगे कि यार प्रार्थना करने वाले और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि आप एक इस घर के अंदर आप एक बटन की तरह होना चाहते हैं? Now in this room there is one switch. For example, there is one switch. When you put that switch on, the light comes for this whole room. अगर आप देखेंगे इस रूम के अंदर बहुत सारे ऐसे स्विच जो है, अगर आप उसको दबाते हो, चालू करते हो, तो लाइट भी चालू होती है। There is darkness in this room, but with that one switch, the whole room is lit. अगर आप देखेंगे कि रूम के अंदर अंधेरा है, लेकिन आप पर एक बटन दबाने से लाइट आ जाती है। You are that switch. वो बटन जो है वो आप है। When one person will stand अगर एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है with us हमारे साथ में to pray, प्रार्थना में, the darkness that is there will vanish. जो अंधेरा है वो खत्म हो जाएगा। Amen. There was one person who stood for Nineveh. एक व्यक्ति जो था वो निनवे के लिए खड़ा हो गया था। First he ran away. पहला वो भाग गया था, And finally he obeyed God. उसके बाद वो प्रभु की आज्ञा मान लिया, And he spoke the message. उसने समाचार दे दिया। Jonah's obedience was a switch for Nineveh and the whole city was saved. योना जो था एक स्विच की तरह काम किया जो लोगों के जीवन में, और पूरा शहर बदल गया। You can change your home. आप आपके घर को बदल सकते You हैं, can change your workplace. आपके काम को बदल सकता You है, can change your school. आपके पढ़ाई की जगह बदल You सकता can है, change your situation. आपकी परिस्थिति को आप बदल सकते हैं। Jonah became angry and discouraged. योना जो था वो तो नाराज हो गया था, Because what God was he's thinking, क्या प्रभु इतना वो लोग पार करते फिर भी आपको क्यों बचाता है? In the word, God, this guy will never change. Why you are saving him? But God will not see those things. God loves the person who he is. कभी कभी हम भी कहते हैं कि प्रभु ये आदमी कभी बदलेगा नहीं, ये सुधरेगा नहीं, लेकिन प्रभु वो देखता नहीं है बाहरी रूप, प्रभु उसका हृदय देखता है। Jonah thought this person doesn't deserve God's mercy. योना ने ऐसे सोचा, How many of us sometimes feel, this person, no, he will never change. He doesn't deserve my praise. You must be thinking like that. But God's thinking is different from your thinking. योना ने ऐसे सोचा कि ये शहर जो है प्रभु उसको नाश करने वाले हैं, लेकिन हमारे सोच जो हम सोचते हैं वो प्रभु जो है वो एक अलग ही सोचता है। Jonah wanted justice प्रभु योना जो था वो न्याय चाहता था, and even punishment for Nineveh. वो चाहता था कि निनवे को जो बुराई करता है उसको दंड मिले। But what was God thinking about Nineveh? तो लेकिन परमेश्वर निनवे के बारे में क्या He सोचता was था? having compassion. प्रभु ने वहां पर दया को दिखाया। He is a God of compassion. प्रभु जो है दया का प्रभु है। No, imagine even us, even me, for example. I must be not right in the front of the Lord and I don't deserve His grace. I don't deserve His mercy. But still God loves me the way that I am. He loves me with my mistakes. He loves me with everything that I carry. He loves me the way that I am. He shows His compassion. He shows me His grace. He shows me His mercy. His mercy is new every day. हम जो है उसके अनुग्रह के पात्र भी नहीं है, हम अनुग्रह के योग्य भी नहीं है, फिर भी प्रभु जो है हम पर अनुग्रह करता है। हम सिद्ध नहीं है, हम सही चलते भी नहीं, हमसे गलत होता है, फिर भी प्रभु हम पर दया करता है, हम पर कृपा अनुग्रह हमेशा बनाए रखता है। Jonah wanted Nineveh to suffer. योना चाहता था कि जो निनवे जो है वो पीड़ित में हो जाए। And what did God wanted Nineveh to be? Saved. प्रभु क्या चाहता था? उन्हें छुटकारा बचाया जाए। What do you want for your situation in one place? For if you are praying for somebody, what do you want that person to suffer or to be saved? जब आप किसके लिए प्रार्थना करते हैं तो आप क्या चाहते हैं उस व्यक्ति के लिए? वो पीड़ित में आए या वो छुटकारा पाए? But God always has best plans for us. प्रभु के पास हमेशा, यीशु के पास एक अच्छा योजना होता है। Amen.
And plans not to destroy us, plans to not to harm us, but plans to prosper us. प्रभु की जो योजना है वो हमें नुकसान का नहीं लेकिन फायदे का है. And now about the plant. Well, now this plant, if you see, and the worm and the sea. Jonah was upset and he ran away from the situation. He was upset because God had saved the city of Nineveh. हम देखते हैं कि योना जो है वो वहां से भाग निकला था क्योंकि उसने देखा कि प्रभु ने निनवे जो शहर है उसको बचाया गया. And when Nineveh went to that one place, God allowed that plant to grow. हम देखते हैं कि जहां पर पौधा, हाँ जहाँ पर पौधा ऊपर हो गया. ओके. When the plant began to grow, Jonah became comfortable. And it was who allowed that plant to grow? It was God. And God destroyed it, but still he was angry on God. पौधा जो है वहां पर एक पौधा उग गया था, वो उसको प्रभु ने उगाया था और वो नाश भी किया, प्रभु ने किया. लेकिन वहां पर योना जो था वो बहुत ही नाखुश रहा. And God allowed the plant to be eaten by the worm. He was upset about that. प्रभु ने ही उस कीड़े को वहां पर लेकर के पूरे पौधे को नाश कर दिया. Finally God asked him one question. फिर से प्रभु ने उसको एक प्रश्न किया. You cared about a plant that did not grow. Shouldn't I care about Nineveh with more than 120,000 people? प्रभु ने उसे कहा एक पौधा जो उगा जिससे तू मेहनत नहीं किया और तू उसके लिए तू नाखुश है, तू नाराज है, लेकिन आप तू देखे कि जो निन्यानवे जो है वहां पर 120,000 लोग हैं, तो क्या मैं उस पर दया नहीं दिखाऊं? Jonah valued temporary comforts. Temporary comforts. योना जो था वो जो कुछ पौधा जो अभी उगा था उसके पर उसका योना ने दया दिखाया. But God valued human souls. लेकिन प्रभु जो है वो मनुष्य का जो प्राण है उस पर दया दिखाता है, उसको महत्वपूर्ण देता है. Amen. Sometimes we don't deserve many things. हम देखते हैं कि हम भी जो है बहुत सारे ऐसी चीज को हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी हम प्रभु की दया को नहीं योग्यता है. But what can we learn from this Jonah story? हम यहाँ पर क्या सीखते हैं इस कहानी से? From Jonah's story, God calls us to pray, प्रभु कहता है कि लगातार हम प्रार्थना करते हैं, forgive, क्षमा करते and हैं show love. और प्यार दिखाए. Even in the difficult and the undeserving and the hostile conditions, you have to do what God has asked us to do. कोई भी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, जो प्रभु हमसे कहता है वो हमें करना है. Sometimes God will use a small plant to show your wicked situations and your heart. We have to learn from those plants that worm, and we have to learn from those things and allow God to work in our lives. कभी-कभी प्रभु हमें ऐसे कुछ जो पौधे को दिखाएंगे जिसे कीड़े खा गए और नाश हो गया. प्रभु हमें अगर कुछ दिखाता है तो उससे हम कुछ सीखे और प्रभु के तरफ हम मुड़े. God can change a violent city like Nineveh. आपके जीवन में जो भी एक वायलेंस यानी जो भी ऐसे बहुत ही कठोर सिचुएशन आपके जीवन में बदल सकता है. प्रभु God can change. प्रभु बदल सकता है. आपके लिए तो कठिन रहेगा, अरे वो तो ऐसा ही, वो नहीं सुधरेगा, वो नहीं सुनेगा, वो नहीं करेगा, ऐसा हम लोग का विचार है. लेकिन प्रभु का विचार नहीं है ऐसा. हम सोचते हैं किसी के बारे में ऐसे गलत विचार, लेकिन प्रभु सही विचार है. God can turn Nineveh around. प्रभु ने निन्यानवे को पूरा बदल दिया. God can turn your situations around. प्रभु आपके परिस्थिति को बदल सकता है. Amen. So let us boldly declare along with Nineveh, Lord, if you can change that nation, you can change my situations. हाय हम घोषित करें एकदम होकर धैर्य से कि प्रभु जब तू निन्यानवे की परिस्थिति को बदल सकता है तो तू हमारी परिस्थिति को बदल सकता God still listens. है. प्रभु फिर भी सुनता है. God still forgives. प्रभु अभी भी क्षमा करता है. God still transforms. प्रभु अभी भी बदलता है. God still changes cities. प्रभु अभी भी चीजों को बदलता I don't है. know, there was a preacher earlier in the 60s. He preached about a city that was full of prostitution, full of this, some movement it is called, I don't remember right now. But that whole city would change because of that one person who prayed. हम देखते हैं कि ऐसे एक पुराने प्रचारक जो था तो वहां पर एक ऐसे वो शहर में गया था जहां पर बुराई होता था, जहां पे बोरी व्यभिचार होते था, ऐसा बहुत सारे चीज. जब उसने प्रचार किया और प्रार्थना किया तो वो पूरे शहर बदल गया था. God gives a second chance. प्रभु हमें
एक फिर से मौका देता है। Repentance and prayer can change many things. जब हम पश्चाताप करते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु बदल देता है। God cares for all the people. प्रभु हर लोग को प्रभु प्यार करता है। Amen. Today now I just want to speak just 2 minutes about the bread and the wine. मैं 2 मिनट सिर्फ प्रभु भोज के बारे में बात करूंगी। From the point of view from the book of Jonah. हम योना की किताब के देखते हो। Now you see Jonah, he was a prophet who came into this one and he was disobeyed. But if you see Jesus also came into this world. हम देखते हैं कि योना ने आया और उसने प्रभु के आज्ञा नहीं माना, लेकिन यीशु मसीह भी इस दुनिया में आया। Jonah, if you see Jonah when he went into the belly fish, we considered it as a spiritual death. हम देखते हैं कि योना जो है एक मच्छी के मुंह में चला गया। हम देखते हैं कि आत्मिक मौत। It talks about grace. He was given grace and he was given a new life and he came out with thanksgiving. हम देखते हैं कि वो उसे एक अनुग्रह मिला, उसे एक नया जीवन मिला और वो मच्छी के मुंह से बाहर आया। You know, scientifically it has been proved that when you go into the fish belly, you have that toxin of the chemical that the fish contains, you know, it removes away all your skin. So when he was thrown out on the shore, you can imagine how he must be looking. आप देख सकते हैं कि ऐसे किसी ने कहा है कि अगर आप मच्छी के पेट में जब आप होते हो, तो मच्छी का पेट में जो एक ऐसी टाइप का एक केमिकल जैसा होता है, जहां पर आपके जो मांस है शरीर का वो पूरा गला देता है। तो 3 दिन के बाद जब योना बाहर आया, तो आप सोच सकते हैं कि उसका शरीर का दशा क्या होगी। So we see over here that Jonah goes down to Joppa. जब योना ने जोपा में गया था, He went down into the ship. वो नीचे की तरफ गया था। He went down into the sea. वो पानी के अंदर चला गया He था। went down into the belly of the fish. वो एकदम गहराई में चला गया था मच्छी And के then the पेट word में। of God says in Jonah chapter 2 verse 6, he went down to the roots of the mountains. Now what do we see over here? We see Jesus. हम देखते हैं कि इस बातों को योना को हमेशा नीचे की तरफ जाते हुए, तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं यीशु मसीह के बारे में। Jesus was given for us. यीशु मसीह हमारे लिए दिया गया। Jonah was given for the city of Nineveh. योना ने शहर के लिए दिया गया। He also went through many problems, Jonah, but Jesus also went through many problems because of us. And the word of God said that when Jesus when Jesus died, and the word of God said that he was there down for 3 days and 3 nights, which is the same representation of what Jonah did into the belly fish. So today when we are partaking of it, understand that whatever we have learned about Jonah, understand that it is just a shadow, the reality is Jesus. अगर हम देखते हैं कि जैसे योना के किताब में, जैसे योना मच्छी के पेट में था और वो पानी के गहराई में और नाव के गहराई में था, हम देखते हैं कि नया नियम में यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर आया और उसने प्रचार किया पश्चाताप का, जितने लोगों ने भी विश्वास किया बचाए गए। यीशु मसीह क्रूस पर गया और यीशु मसीह उस कब्र के अंदर था और तीसरे दिन जी उठा। The Bible says in Jonah chapter 2 verse 6, you brought my life up from the pit. So this, if you see how Jesus also has brought our life out of the pit, and because if Jesus was not there today, where would you and I be? हम देखते हैं कि योना कहता है कि तूने प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन को गहराई खड्डे से बाहर निकाला, वैसे ही यीशु मसीह भी वैसे ही उस कब्र से बाहर आया। As often as you eat this bread and drink this cup and proclaim the Lord's death until He comes. So communion is not about death alone. It is a celebration of what Jesus has done for us on the cross. हम देखते हैं कि यहाँ पर वचन कहता है कि जब तक पर यीशु मसीह वापस नहीं आता, हम उसके याद में ये प्रभु भोज लेता रहे। When the fish threw Jonah out, it was resurrection. जब मछली यूहन्ना को अपने मुंह से बाहर निकाला, उसका मतलब यह है उसका फिर से पुनरुत्थान हो। After 3 days. 3 दिन के बाद। So this is speaking about Jesus. और ये यीशु मसीह के बारे में कहता है। Jonah chapter 2 verse 9 says, I will sacrifice to you with the voice of a thanksgiving. और यूहन्ना कहता है कि मैं आपको धन्यवाद कहूंगा अपने शब्दों के द्वारा। So when we are today partaking of the bread and the wine, जब हम इस प्रभु भोज में भाग ले, understand that God, Jesus came into this world. यीशु मसीह इस
जगत में आया। You know, he could have said many things like how Jonah said, "This is a wicked people. Why do I have to go?" But he became humble. The word of God says he came because he loved us. He came to be the representation of who our Father is. Compassion and mercy. He came because of that, so that we can have that compassion, so that he can minister to us that compassion and that mercy. So when we partake of the bread and the wine, we will give thanks to the Lord. Lord Jesus, if you had not come with that compassion and that mercy, where would I be today? Lord, we thank you for that. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस जगह में, इस देश में, इस शहर में, इस दुनिया में आया जो पूरे पाप में गिरा हुआ है, पाप में भरा हुआ है। अगर यीशु मसीह आज 2000 साल पहले अगर क्रूस पर नहीं मरता तो शायद हम कहां पर होते। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के उस क्रूस पर हवाले हो गया, इसके लिए आज हमारे ऊपर अनुग्रह, दया, कृपा है। तो आइए हम भी पश्चाताप करते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रभु भोज में भाग लें। God rescued Nineveh. प्रभु ने निनवे को बचाया। He raised Nineveh up again. उसने फिर से निनवे को मौका देकर उसे ऊपर उठाया। He restored Nineveh. उसने निनवे को फिर से पुनरुत्थान किया। He renewed Nineveh. और उसने पूरी बदल दिया। The same thing Jesus is doing to us today with us when we partake of the bread and the wine. He rescues us. He raises us. He restores us. He renews us to be a new creation, a new covenant with Jesus. जैसे हम प्रभु भोज में हम भाग लेते हैं, फिर से प्रभु हमें बदल देता है, हमें नया बनाता है, हम पर दया करता है और हमें फिर से मौका देता है प्रभु में चलने। Amen. This is open invitation to everybody. ये सबके लिए एक आमंत्रण है। Open invitation. ये खुला आमंत्रण है आपके लिए। Come to the table. आइए हम इस प्रभु भोज में आए। Experience His grace. उसके अनुग्रह को हम ले। Experience His love. उसके अनुग्रह के अनुभव और प्यार का अनुभव ले। Experience His compassion. उसके दया का अनुभव ले। Experience His restoration in your life. उसका अनुभव ले, हम उसके हमारे जीवन को फिर से नया बनाने के लिए। Blessed is the man who trusts in the Lord. आशीषित है वो मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। And cursed is the man who trusts in the man. वो श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। Amen. We will trust in the Lord. तो आइए हम प्रभु पे भरोसा रखें। Come, we will stand in His presence. आइए हम खड़े हो जाए प्रभु में। Just close your eyes. थैंक यू जी। Even as the emblem comes to you, even as it comes to you, just be in prayer. Just close your eyes. Just close your eyes. Just close your eyes. प्रभु धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद इस प्रभु भोज के लिए प्रभु, जैसे हमने वचन को सुना प्रभु, इस समय प्रभु हम पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु आपके चरणों में आते हैं, नम्रता होते हैं प्रभु, हम नम्र होते हैं इस समय, नम्र होते हैं, नम्र होते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम नम्र होते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम नम्र होते हैं प्रभु, हम नम्र होते हैं इस समय, हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। क्षमा कर दे प्रभु हमें, क्षमा कर दे प्रभु हमें, क्षमा कर दे प्रभु हमारे हर एक जो कार्य प्रभु जो आपको पसंद नहीं है हमारे जीवन में, क्योंकि आपका वचन कहता है पहला यूहन्ना में कि हमें प्रभु डू नॉट लव द वर्ल्ड, हमें दुनिया को प्यार नहीं करना है, दुनिया की चीज़ों को प्यार नहीं करना है, लेकिन प्रभु आपको प्यार करना है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं आपकी बलिदान जो क्रूस पर आपने मेरे लिए दिया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका बलिदान प्रभु जो आपने लहू बहाकर प्रभु मुझे क्षमा किया, आपके शरीर को तोड़कर मुझे क्षमा किया। धन्यवाद प्रभु, मेरे हर पाप को आप जानते हैं, मेरे हर बुराई काम को आप जानते हैं, मेरे हर झूठ बोलने वाले जुबान को आप जानते हैं, मेरी बुराई सोच को, देखने वाले आंख को, सुनने वाले कान, मेरे हाथ, मेरे पैर, जो शरीर का अंग जो भी बुरा किया है आप जानते हैं। लेकिन आपका वचन कहता है आपकी दया महान है। प्रभु इस समय हम पूरी तरह से हृदय से हम क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप हम मांगते हैं, पश्चाताप हम मांगते हैं प्रभु, हम करते हैं पश्चाताप प्रभु, हमें क्षमा कर प्रभु, जैसे आपने निनवे के शहर को क्षमा किया, हम क्षमा मांगते हैं जो भी हमने किसी के लिए बुरा कहा है या बुराई सोचा है या बुरा हमने किया है,
क्षमा मांगते हैं, या आपके तरफ हमने अगर प्रार्थना छोड़ दी है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, आपके साथ में वार्तालाप नहीं करते हैं, आपके अनुग्रह को हम प्रभु आदर नहीं करते हैं, आपकी दया को अनुग्रह को दया नहीं हम नहीं देते हैं प्रभु, हमें क्षमा कर प्रभु, हमें आदर नहीं देते, आपको क्षमा कर, क्षमा कर प्रभु, यह आपकी दया है, आपने हमें बचाया है प्रभु। इस प्रभु बोझ पे आशीष दे प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि हम पूरी तरह चंगाई हो चुका है, जो टूट चुका है, जो बिगड़ चुका है हमारी जिंदगी में, जो परिस्थिति है उसको आप बदलने जा रहे हैं, आप बदल रहे हैं प्रभु। प्रभु जैसे हम इससे भाग लेते हैं, इस प्रभु बोझ पे आशीष दे, जैसे हम इसे ले हमारी जीवन बदले, आपके अनुग्रह में आए, बदल दे प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन।